I, Dr. Rohit Khokar, welcome you all on my personal behalf and on behalf of Vidya Prakashan Mandir Limited in today's event, Paricharsha, a school virtual summit for principals and teachers, a virtual summit. कुछ करना है तो डटकर चला, थोड़ा दुनिया से हटकर चला, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चला, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हौसला हो मंजिल तो राह में आराम कैसा, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा पूरी मेहनत का फला, किसी और को ना इंतजार कर, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते इंतजार नहीं उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं. I take this proud privilege to welcome everyone, every educator with us, and especially our key speakers and panelists. I take proud privilege welcoming Madam Bharti Gandhi with us, who is a name which needs no introduction. She is a founder director, City Montessori School, Lucknow. I also welcome Madam Sunita Gandhi, daughter of Madam Gandhi, for today's valuable time. कि मैडम आपने टाइम निकाला और हमारे साथ आप आज जुड़ गए हैं. Abhi shortly, Professor Rajput will join with us and will also join by our Om Pathak sir, our next key speaker. I also welcome our panelists today who have taken out a time. Madam Lata Vidyanathan, which is again a name into education industry. Ma'am, welcome. And aaj aaye hain. Thank you very much कि आपने time दिया. I welcome Madam Aluwalia, Madam Madhu Aluwalia, who is a senior advisor in NABET and Quality Council of India, New Delhi. I also welcome Mr. Sudhanshu Shekhar, who is a national awardee principal of KL International School with us. So welcome once again, everyone on the panel. Before starting, I would like to introduce our organization and our line. Prakashan Mandir Private Limited is a leading publisher pan-India in the field of education for over 40 years with a successful track record of quality publication of children books and has been positioned as a pioneer in quality of content and publication domain. It has been honored with a numerous award to include National Award by the Honorable former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam in 2005. The inevitability of drastic changes in education system is now clear to everyone. Teaching and learning would never be the same in post-corona. World after lockdown are lifted nationally and internationally. Change shall always be resisted by reluctant, grudgingly accepted by lethargic, and enthusiastically appreciated by the innovators and entrepreneurs. Change will come anyway, overcoming all impediments. There is a silence in the education world due to the direct or a classroom communication gap between students and teachers. Dialogue is the real force of education. उसी काम को करने के लिए आज की परिचर्चा का हम लोगों ने जो है आयोजन किया है और मैं पुनः आप सब लोगों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं. The session 2 will be digitization of education and इसके अंदर भी एक क्वेश्चन मैं अपने पैनलिस्ट से पूछूंगा एंड फिर मैं राजपूत सर को निवेदन करूंगा कि वो हमें बताएं. So I again reach to Madam Vidyanathan. To you, ma'am. We start with you again for the session. The question is, which is again a very prasangik आज की तारीख के अंदर and have a lot of relevance. Transition from traditional classroom to virtual classroom. How to prepare the future generation and how to get ourselves trained as well. Because जब मैं जानूंगा जभी तो आगे पढ़ा पाऊंगा. So इसके बारे में मैम आप बताइए please. Over to you, ma'am. You know, मैं जब इसके बारे में सोच रही हूँ तो एक ही सवाल बार बार मन में आ रहा है कि ये जो ट्रांजिशन हो चुका है, you know, things that have happened has happened so fast that we are actually writing back our experiences. Now, there are two things. What is the traditional way and what is the virtual way? It is very interesting that what is traditional or virtual, and in both, there are certain similarities which talks about the quality of the transaction of education, which is essentially pedagogic. जिसमें वो कैसा हो रहा है becomes more important and should be more important than how it's happening. So if I compare the two, what was traditional
The traditional was children came to class. They all wore uniform, so there was no difference. They all sat in the class, so there was a level playing field. The environment was common for all of them. There was one teacher in front of their classroom through various subjects, either in the scholastic field or on the co-scholastic field or on the sports field. Their experiences were shared experiences amongst all, and therefore it was very quick in terms of getting to know and getting to feel each other. The teacher would know their responses by looking at them, by asking them certain questions, also making sure that they are safe in a secure environment, and all of them have a similar environment in classroom. So the traditional environment was common for all with more number of children. The advantages, however, being that the teacher could see face-to-face, eye-to-eye responses and decide on the health of the child, on the response of the child, on the behavior of the child. So there was a complete correction and attention to not only the subject and its transaction, but also everything else that refined the individual, and we can call them a educated mind or an educational process. The interesting part, however, is that it was common for all. Now, there was a common blackboard, and in more recent settings, there was a smart board. The technology intervention was happening within the classroom. There were ways in which there was access to information in more than one way. But with all that, we could see that there was some commonality and there was an instant feedback, which was what was presumed. And also it was happening. Now compare this to the virtual classroom. The virtual classroom, the teacher cannot be touched. The challenge of tech versus touch will always remain a point of debate. It will have its both sides, good and not so good. However, if this is the truth, and when we start looking deep into what technology-aided education can be, it is so remarkable that we find that the transition and training is not limited to and required to only meet with the syllabus, but the whole pedagogy changes. Also, if you look at the infrastructure point of view, there are some presumptions, and we are not getting into the equity access issues of the digital divide that we have. बच्चों के पास साधन है, टेक्नोलॉजी के साधन है, घर का माहौल ठीक है, और कोविड के समय में माता पिता भाई बहन सबको सेम टाइम में शायद टेक्नोलॉजी टूल की आवश्यकता होती है. ये शेयरिंग ऑफ टूल्स हो रहा है घर पे, एडिक्वेट बैंडविड्थ है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लास्ट माइल उनके जहां रहते हैं वहां से काम हो पा रहा है. I mean, इतने सारे environmental and infrastructural challenges हैं कि कुछ तो ठीक हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे अच्छे नहीं हैं. चलो ये तो हुई एक माहौल की बात, बट आई थिंक ये माध्यम से जहां बहुत सारे टीचर्स हमें सुन रहे हैं, वन ऑफ द थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो मैरिज ऑफ टेक्नोलॉजी विद करिकुलम है और इन दोनों के बीच में द प्रोसेस, द पेडागोजी है, उसमें तो बहुत बड़ा शिफ्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चॉक एंड टॉक या बोर्ड में कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कर दो तो ट्रांजैक्शन हो गया, ऐसा नहीं है. इसमें बहुत खूबसूरती से बच्चे को, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है जो हम बहुत छोटे बच्चों को या प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नहीं कह सकते, तो उनका तरीका थोड़ा एक्सपीरियंशियली अलग तरीके से होगा, बट उसके बाद जो 6 to 12 तक की है, वहां पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को सीखने की अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, और ये बात माता पिता को और घर में जितने लोग हैं सबको समझ में आनी भी जरूरी है. Also, when we say that the child has to take responsibility for his own learning, when he is learning online virtually, then the whole issue is that we are not transacting content, we are trying to transact concept, we are trying to transact competency, we are trying to transact skills. तो ये जब चीजें होती है तो एक, this is not just a challenge but it's a huge opportunity to understand कि जो हम सोचते हैं कि हमारे बताने पे ही बच्चों को मिलता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हमारे जमाने की शायद बात थी
कि गुरु एक और फिर हम उससे सीखते थे। अब तो एक मल्टी सेंसोरियल, मल्टी डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी, सो मेनी वेज ऑफ लर्निंग, कितने और माध्यम हैं जिससे बच्चों की सिखाई हो रही है कि हमें उसका एडवांटेज लेना चाहिए। और इसको हम चाहे सिंगल करें, चाहे ग्रुप्स में करें, चाहे स्मॉल ग्रुप्स में करें, बिग ग्रुप्स में करें, और इसके प्रोसेस में हमें सर्च लानी चाहिए, रिसर्च लानी चाहिए। इसके प्रोसेस में बच्चों को कलेक्शन, डेटा, जो हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म या वर्चुअल लर्निंग में और पॉसिबल है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे टूल्स अब शायद सबने जान भी लिया होगा, जहां सर्वे कंडक्ट करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, क्विज कंडक्ट करना, क्वेश्चनेयर निकालना, फिर उन सबको आते से बड़े इजीली उस डेटा को एनालाइज करना, जो हायर ऑर्डर लर्निंग की हम बात करते हैं, वो सब it seems a little easy. We do not know how impactful, because impact studies will take a little time. बट कहीं ना कहीं ये विश्वास जरूर आ रहा है कि इस वे को, वर्चुअल लर्निंग की जो ट्रांजिशन और कॉम्पिटेंस है और उसकी जो एडवांटेजेस हैं, हमें we need to think about it and get on to that bandwagon, and I'm very sure that the future generation is more clued on to it than we think. हमें ट्रांजिशनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वो शायद, उनसे पूछो पैडलेट क्या है, वेकलेट क्या है, वो शायद हमसे ज्यादा तेजी से बता पाए। They are able to display all their responses far more easily than we think. And this is not a story of just the rich schools and rich children, or private schools and private children. These are taking it, soaking in from the environment. You just have to give it to them. And I think जो इतना कुछ हम कर सकते हैं, शायद हम सबके मन में वो that feeling that we have to transact हो, तो ये बच्चों के पास साधन अपने आप हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है जितना आसान मैं कह रहे मुझे लगता है, बट आई थिंक ये ट्रांजिशन हम जो सोचे उससे कई ज्यादा जल्दी होगा। इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल है, क्योंकि उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको टीचर के साथ एम्पैथाइज करना पड़ेगा। दे हैव टू अंडरस्टैंड द टीचर इज स्ट्रगलिंग फार मोर एंड बी अ पार्टनर इन दिस लर्निंग प्रोसेस, जहां वो पहले इतने ज्यादा नहीं थे। अब बच्चों के बगल में बैठ के उनको, और छोटे बच्चों के साथ तो और भी ज्यादा, ये सारे जो ट्रांजिशन है, इसको मैं वर्चुअल लर्निंग चैलेंज कहूंगी, पर चैलेंज के साथ इसे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी कहूंगी। बिल्कुल मैम, परफेक्ट, वंडरफुली एक्सप्लेन दिस थिंग। एंड अभी मैं इस पे कमेंट करूं, उससे पहले हम ओम सर का वेलकम करते हैं। ओम सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम सर। वेलकम सर। हाउ आर यू? हाउ आर यू? ओम सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, यू आर म्यूटेड। ओम सर, अनम्यूट कर लीजिए, यू आर नॉट ऑडिबल। Lata ji, after a long time. How are you? How are you? Very well indeed. Very well, thank you. Nice to see you. So nice to see you. Namaskar Rajput ji. राजपूत सर, आपको भी अनम्यूट करना पड़ेगा, आप अनम्यूट हैं। स्क्रीन पर ही सेकंड आइकन होगा आपका, नीले रंग का। अभी नहीं हुए हैं सर अनम्यूट आप। आपको एक बार जो पावर बटन के साथ नीला बटन है उसको देखना हो। जी सर, आगे आगे। ये सर तो ओम सर वेलकम है ना, कंटिन्यू करते हैं। अब तो पैनल पूरा हमारा हो गया। लता मैम ने जिस तरीके से बताया कि इट इज अ अपॉर्चुनिटी आल्सो, प्रोबेबली दिस इज अ पॉजिटिव थिंग दैट इन दिस कोविड-19 वेयर एवरीथिंग इज देयर, ये एक जरूरी है कि हाँ, इसको अपॉर्चुनिटी के साथ भी देखना ही है। Carry forward our discussion. I am moving with next question to Madhu Ahluwalia ma'am. Ma'am, we are looking forward. Your thing is how to build this capacity of teachers to handle blended learning, because we are lot much talking कि इसकी अब जरूरत तो है, and few private players are doing it. लेकिन how it can be there onto the government sector? आपने बताया कि आपने गवर्नमेंट कुछ स्कूल के अंदर भी इसको वर्कआउट किया है. So how to build it, ma'am? Over to you. Yeah, thank you. लता वैद्यनाथन मैडम ने बहुत अच्छा बोला कि इट इज अ टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स का जो ट्रांजिशनिंग है, that is taking time, because for children it's a cakewalk. For teachers and teacher educators are really struggling. Now
the rapid move to online mode of delivery in order to keep students engaged in learning is becoming a challenge. And therefore, I think teachers जो हैं हमारे, उनकी training, उनकी capacity building, उनको इसके nuances बताना बहुत जरूरी है. टीचर्स के पास बहुत ज्यादा एडिशनल प्रेशर आ गया है. जैसे मैंने पहले भी बताया कि कन्वर्ट करना टीचिंग मटेरियल को डिजिटल फॉर्मेट्स में, वर्कशीट्स में, क्लासेस में, प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, क्या गूगल क्लासरूम है, उसको व्हाट्सएप कब चेक करना है, कैसे स्टूडेंट्स को एंगेज करना है, कैसे इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को भेजना है, कैसे प्रिंसिपल से इंटरेक्ट करना है, कैसे स्टूडेंट्स का असेसमेंट करना है. जब हम चॉक एंड टॉक की मेथड की बात करते हैं तो टीचर्स को बहुत आई कांटेक्ट से पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट को समझ आ रहा है, किसको नहीं समझ आ रहा. नाउ इफ इट्स ऑनलाइन, सो टीचर्स आर स्ट्रगलिंग कि हम बच्चों से कैसे असेस करें, बच्चों को कैसे असेस करें, और ये सारी चीजें जानने के लिए वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. अब उनको ऑनलाइन जाने को बोला है तो जितना भी वो कर पा रहे हैं वो अपने आप से कर रहे हैं. एंड स्पेशली टीचर्स हु आर वेरी वेरी प्रोफिशिएंट इन कंडक्टिंग face to face, they are masters in conducting face to face trainings and workshops, and chalk and talk method जो उनके लिए बहुत बढ़िया मीडियम रहा है, अब उसको अनलर्न करके रीलर्न करना ऑनलाइन, वो वहां पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं. और टीचर, जैसे मैंने भी पहले भी बताया कि बहुत सारे टीचर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि जूम के जो फीचर्स हैं, बिकॉज आई एम एन IT person and I know there are so many features in Zoom which a teacher can utilize, can allow students to conduct group activity कर सकते हैं, mingle कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, experiential learning भी कर सकते हैं. But you know, teachers को ये सब नहीं मालूम था अभी तक. इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो नहीं मालूम था. LMS अगर स्कूल के पास है तो वो उसको यूज करते हैं, बट अगर स्कूल के पास LMS नहीं है तो उनको जो ओपन सॉफ्टवेयर्स है लाइक MOOC एंड Moodle, वो उनको नहीं मालूम है कि कैसे यूज करना है, उससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें कैसे कंटेंट क्रिएशन करते हैं. PPT, जो पहले PPT बनता था वो अलग था. अब PPT में म्यूजिक भी चाहिए, अटेंशन स्पैन भी चाहिए, और थोड़ा एनिमेशन भी चाहिए, थोड़ा 3D भी चाहिए. वो कैसे क्रिएट करें, सडनली उनको ये सब नहीं समझ में आ रहा कि हम ये इसको टीचर्स कैसे कर पाए. अब ये जो ट्रांजिशनिंग है, हमने देखा कि हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल्स में तो बहुत एफर्टलेसली हो गया, बट यू नो द प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी टीचर्स आर रियली स्ट्रगलिंग कि हम कैसे अपना कंटेंट क्रिएट करके इनको दे पाए. अब हमने क्या किया, हमने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट की फॉर 3 days, जिसमें हमने बहुत एक्सपर्ट्स को बुलाया, एंड वी फर्स्ट टोल्ड द टीचर्स कि ब्लेंडेड लर्निंग है क्या. उनको सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताए, दीक्षा कैसे यूज करना है, स्वयं कैसे यूज करना है, स्वयं प्रभा कैसे यूज करना है, और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था. उनको असाइनमेंट्स भी दी हमने जहाँ पे उनको वो काम करके आना था. और Moodle पे, स्पेसिफिकली Moodle पे जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दी हमने कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उस पे कैसे क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, बच्चों को किस तरह से असेस करना है, विद इन द टाइम लिमिट कैसे असेस करना है. आप एक क्वेश्चनर क्रिएट करके, एक सर्वे क्रिएट करके दे सकते हैं, और बच्चों को बोल सकते हैं कि विद इन 2 minutes और 3 minutes यू हैव टू डू इट, एंड वो जो गूगल फॉर्म होगा वो इमीडिएटली 3 minutes के बाद डिसेबल हो जाएगा. सो वो सब चीजें जो उनको नहीं मालूम थी, वो हमने उनको Moodle पे बनानी सिखाई. क्लासरूम कैसे इंटरैक्ट करते, क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट कराना है, ग्रुप एक्टिविटी कैसे करनी है, वो हमने उनको ऑनलाइन असाइनमेंट्स के थ्रू कराई. ई लर्निंग मटेरियल कैसे बनाना है, PPTs में कौन से ऐसे फ्री साइट्स हैं जहाँ पे पैसे नहीं खर्च होते, और वहां पे जाके वो म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने PPTs इफेक्टिव बना सकते हैं, वो हमने बताए. हमने उनको गूगल क्लासरूम, Zoom, Microsoft टीम, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स है, इनके सारे फीचर्स के बारे में बताया. तो ये 3 दिन की जो हमारी वर्कशॉप थी, 3-4 hours per day. All the teachers, in fact, I think 78 teachers participated.
and all of them gave a very good feedback saying कि वो फिर से स्टूडेंट बन गए थे, उन्होंने फिर से लर्न किया सब कुछ, एंड हमने असाइनमेंट्स के थ्रू उनका असेस किया, उनको चेक किया. नाउ द नीड ऑफ एन आर इज कि ये सब अब हमारे यहाँ पे तो 15 लाख से भी ज्यादा कितनी टीचर्स हैं, हर एक को ट्रेनिंग कैसे इतनी जल्दी इतने कम समय पे दे पाएंगे. देयरफॉर हमको गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी, गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन क्लासरूम, गाइडलाइंस टू मेक ऑनलाइन क्लासरूम्स स्ट्रेस फ्री. जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको किस तरह से हम अच्छे से इफेक्टिवली बना सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, वो हम को गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी. हमें गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज कैसे कर सकते हैं. सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दोज गाइडलाइंस एंड वी विल बी आल्सो कंडक्टिंग सर्टेन वर्कशॉप्स. इन फैक्ट हमारी जो इतनी डिमांड आई इस वर्कशॉप की that we have launched another one next week, पर वो टीचर्स ने बोला कि पोस्ट लंच कीजिएगा because teachers they want to take their classes in the morning. हमारी जो ये वर्कशॉप है जो हम रीच आउट करना चाहते हैं, हम लो बजट प्राइवेट स्कूल्स, एलीट स्कूल्स तो नहीं पर रूरल स्कूल्स में हम रीच आउट करना चाहते हैं ताकि उनको हम हेल्प कर सकें that how can they make their classes interesting, interactive and cost effective. तो सबसे ज्यादा जो इस टाइम हमारे को फोकस करने की जरूरत है वो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, उनको हेल्प देने की जरूरत है, उनको गाइडलाइंस ऑफ कंटिन्यूअल ब्लेंडेड लर्निंग बताने की जरूरत है, उनको ये बताना कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हम हमेशा बोलते हैं कि हम टीचर को असेस कर रहे हैं, हमें टीचर को असेस नहीं करना, हमें बताना पड़ेगा कि टीचिंग लर्निंग जो एक प्रोसेस है उसका जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो टीचर है एंड स्टूडेंट. ये दोनों स्टेक होल्डर पे इफेक्टिवली जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसको किस तरह से करे ताकि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा समझ आ सके. सो टीचर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, जो हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है और हम लेते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम गाइडलाइंस वगैरह बना के पब्लिक डोमेन में डाल पाए ताकि टीचर्स उसको अच्छे से यूज कर पाए. थैंक यू रोहित. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. तो ये जो ट्रेनिंग वाली बात है, आई एम श्योर कि जब ओम सर को सब लोग सुनेंगे तो ओम सर ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने यहाँ पे बनाया है ऑनलाइन ट्रेनिंग का टीचर्स का, जिसमें ही है ट्रेंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द टीचर्स एंड दे आर वेरी वेल डिलीवरिंग दिस ब्लेंडेड लर्निंग टू द स्टूडेंट्स. एंड आपने जिस तरीके से बताया, लता मैम ने बताया, पहले पॉइंट में तो ये क्लियर था कि अब थोड़ा सा स्विफ्ट करना पड़ेगा एजुकेशन में जहां टेक्नोलॉजी इम्पार्ट करना होगा. सेकंड में ये भी सामने आ रहा है कि अब टीचर्स ट्रेनिंग भी पैरेलली चलाना होगा, चाहे वो उस गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसी में. अभी उस पर और बात करेंगे. नाउ गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेकंड सेशन टू सुधांशु सर. रोहित, थोड़ा इंटरजेक्ट कर सकता हूं मैं? सर प्लीज सर, प्लीज सर, ओम सर प्लीज. अभी जो लता जी ने और मिसेस आलूवालिया ने बताया जी, बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लता जी ने जैसे बताया कि ब्लेंडेड लर्निंग फ्यूचर है जी सर, और मिसेस आलूवालिया ने बताया कि कैसे उन्होंने उसको अचीव किया है, बहुत कमेंडेबल है जी. पर मैं केवल 2 शब्दों में अपनी बात रखूंगा क्योंकि मेरा ये विषय नहीं था, पर फिर भी चूंकि जिक्र आया तो मैंने सोचा कि नहीं सर, आप हर जगह है सर, आपका जॉनर सारा है. हमने आज ही लगभग 1100 टीचर्स की ट्रेनिंग कंक्लूड की, 12 दिन की ट्रेनिंग की, और इट वाज बाय द टीचर्स, फॉर द टीचर्स, ऑफ द टीचर्स. बाहर से कोई रिसोर्स पर्सन नहीं आया जी. हमारे आईसीटी टीचर्स ने 3 प्लेटफॉर्म्स को जिनका आपने मिसेस आलूवालिया उल्लेख किया. दे एग्जामिन्ड गूगल क्लासरूम, Zoom and Teams, Microsoft Teams. And this was soon after the COVID broke out. And they came to the conclusion that Microsoft Teams was far more comprehensive than anything. Yes. And you know, Lata ji, the kind of quality of pedagogy that's undergone a transformation, suddenly you find that the whole digital system has built much greater accountability than there ever was. Because the resources, assignments, everything is online and you can see it. तो ये 2 बड़े लाभ हुए हैं
पर एक छोटा सा एक प्रश्न जो है, जो हमको अभी और एड्रेस करना होगा, इसके बारे में चर्चा हो रही है दुनिया भर में, वो है स्क्रीन टाइम के बारे में। अब स्क्रीन टाइम के बारे में भी लोग ये कह रहे हैं कि अगर बच्चा अटेंड नहीं कर रहा है क्लासेस कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, किसी और डिवाइस पे, तो वो कुछ ना कुछ और कर रहा है। आज बच्चों की इतनी वो प्रेडिलेक्शन है कि वो माँ बाप से उनका फोन लेके और लग जाते हैं। तो भाई ये स्क्रीन टाइम नहीं होगा तो वो अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम होगा। तो आउट ऑफ द टू आई फाउंड दैट स्क्रीन टाइम इज रियली नॉट सच अ बिग इशू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब बच्चे और माता पिता कहीं जा नहीं सकते तो उनको आप कैसे प्रोडक्टिवली एंगेज करें। तो ऑनलाइन क्लासेस जहां जहां, और बहुत सारे स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने इसको बहुत बड़े पैमाने पे रोल आउट किया है और उसका लाभ बच्चों को मिला है। अगर ऐसा ना होता तो मुझे लगता है बहुत बड़ी इमोशनल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, बच्चों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता माता पिता के लिए, और बच्चों के पास कुछ नहीं होता करने के लिए। तो in a certain sense, online learning has also come as a blessing. Correct. Correct. जी सर, ऐसा वंडरफुल इंजेक्शन सर, बीच में बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट ये चीज आया है कि बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए तो वो नीड है ही है। वही मेरा क्वेश्चन अगले पैनलिस्ट में सुधांशु सर से है। सुधांशु सर, ओवर टू यू। द क्वेश्चन इज, COVID-19 is sparking a revolution in school education. How schools can develop confidence in stakeholders? वो सिर्फ एक टीचर बच्चे की, स्टूडेंट की बात नहीं, उसमें वो पेरेंट्स भी आते हैं, जिन पेरेंट्स को रूरल बैकग्राउंड या ऐसा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का दूर दूर से वास्ता नहीं है। ओवर टू यू सर। Am I audible? Yes sir. Yeah. Yes. Recently, I have read in a magazine which writes lockdown hit Indian homes, transform into schools. So homes, they have transformed to schools, and parents with new role of teachers. So we used to hear that schools are the second home and home is the first school. So now it is coming true. So when I find these challenging times, I also find this is one of the historic opportunity to redefine Indian education system or Indian school system. I think this is a time when we always think that we have to do something challenging. The schools, they have to understand there is a big challenge. I have some points which I feel I'll share with everybody. You know, we understand the basic point that parents, they are concerned about their future, of their child, and it is there, it will be always there. So we need to learn to teach. We learn to teach or guide the students with school, without school, with teacher, without a teacher. So let us think very fresh about role of our schools. So schools have to assure that every child, that is important to him. Every child is important to school. See, online technology can only complement. It can complement the learning in the school, learning outside the school. But we need teachers. We need learning at all stages, and we need that technology should be there as a part of it. I was talking to some of the parents and some of the students of board classes 10th and 12th, and they're still asking that why we can't join the school. They need teachers. They need teachers to guide them, to know them, to question them, to ask their problems, to solve their problems. They're also asking for when our practical classes will be there, when are going to labs, when are going to meet the friends. So we have to understand teacher has to play a vital role here. Now, when we talk about confidence, we have to take our parents into confidence, and then we have to tell them not to be hurried to send them to school, because it is a very difficult time and students cannot come to school. We have to assure safety to them. On the second point, we have to understand, we have to focus on the child's happiness. We have to support for responsible behavior. They are learning through Zoom classes. They are learning through video classes. They are learning many things through their assignments, through their notes. But the best word is, we have to tell them they have to learning to learn. How they are going to learn these new things. So every child
should stay connected with school, enjoy the new teaching methodology, innovation in leveraging technology, and there will be a lot of capacity building programs for teachers and students. I think e-learning ecosystem is going to be the new mantra. Opportunity for the digital transformation of education system. Now, on the second side, when I talk, I find we need to address the mental health of the students because they are without friends. There is no activity. There is no regular classroom, no play field, no activity. Fine, we'll be doing yoga classes, virtual yoga classes. We'll be doing some virtual dance classes. But the mental health of the student has to be taken in a good care. You know, when I come to teachers, we find that we are not thinking machine. We are feeling machine that think. So teachers are the feeling machines which think. And beyond connection, we need to connect to our students emotionally. And if we are able to connect our students, our parents emotionally, I think we are building a confidence among our parents. So 5 things which we can do. We have to repeat our lessons which we taught, talk to students more often, ask our students how can we help them, email students that you are for them, and then at the time of challenges, we are there for you to support you and talk to you in your problem time. I think that is the way we can build confidence. And there is a famous saying, I read it and I have learned, out beyond ideas of wrongdoing and right doing, there is a field. I'll meet the mantra of every teacher. Thank you. Perfectly, sir. Perfectly concluded, sir. Or I'm getting the feeling that we are blessed to know Chanakya and Drona of ancient time. But today also the teachers are there who met and who accept the challenges and always on the forefront to get the results or solve them up. So perfectly पहला सेशन जो जा रहा है और दूसरा जा रहा है उसने बहुत सारी पिक्चर एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से ब्रॉड तरीके से क्लियर कर दी है। अब मैं दोबारा से आप लोगों को सामने प्रोफेसर राजपूत सर को मंच पे आने से पहले इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं और फिर आग्रह करूंगा कि सर आएं और अपने इतने वास्ट एक्सपीरियंस जो उनको है उसके बारे में और उससे जुड़े हुए इस समस्या को कैसे सॉल्व करें उसके बारे में बताएं। Professor Rajput is an Indian educationist, writer, and a former director of the National Council of Educational Research and Training, NCRT. When the National Council for Teacher Education, NCT, was established in 1994, he was the founder chairman of the council, where he served until he is moving 1999 to NCRT as its director. Rajput sir has published several articles and books on physics and education in English and Hindi languages. He had written Encyclopedia of Indian Education, Education in Changing World, Fallacies and Forces, Contemporary Concerns of Education, and many more. Sir was awarded and conferred with Padma Shri Award by President of India. And sir, आपके लिए तो परिचय करना मतलब मैं तो बच्चा हूँ तो I can take this privilege to do it. Over to you, sir. Please. आप एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर बहुत अच्छे से पहुंच रही है और के साथ पहुंच रही है जैसे पहले थी। So, स्टीव पाठक जी, लता जी, मधु जी, डॉक्टर खोकर और सुनने वाले साथियों और अध्यापकों, मुझे अभी तक की परिचर्चा सुनकर बहुत अच्छा लगा। कितनी व्यवहारिक बातें हमारे सामने आई हैं और क्यों ना आती। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अदृश्य शत्रु ने सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया है, एक कर दिया है और सब लोग एक ही समस्या का समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं। हमें यह भी पता लगा इस दौरान कि मनुष्य को लगता था कि हमारा ज्ञान बहुत बढ़ गया है, हमने बहुत कुछ प्रकृति के रहस्यों को जान लिया है, लेकिन हमें यहाँ प्रकृति ने महसूस करा दिया कि जी नहीं, अभी आप बहुत पीछे हैं, आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ खोजना है। मैं इसमें ये भी देखता हूं कि करीब अनुमान है कि 150 करोड़ बच्चे या करीब 170 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, सीधे प्रभावित हुए, उनका बचपन प्रभावित हुआ है और उनका जीवन में जो कहते हैं बचपन का आनंद है वो प्रभावित हुआ है।
बहुत से माता पिता मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि हम 1 साल बच्चे को ना पढ़ाएं तो कोई चिंता नहीं, लेकिन उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये सुरक्षा सुनिश्चित कौन करेगा? इसके लिए स्कूलों को, जो बात अभी संभवतः नहीं आई, कि अपनी कार्य संस्कृति बदलनी पड़ेगी। बच्चे केवल पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, आपको बच्चे की हर चीज देखनी पड़ेगी, आपको स्वच्छता देखनी पड़ेगी, आपको उसकी संवेदनात्मक स्थिति को देखना पड़ेगा, आपको ये देखना होगा कि वो लोगों से कैसे मिलता जुलता है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हर अध्यापक अब अपने उत्तरदायित्व को पुनर्परिभाषित करे और स्वयं करे। क्योंकि दुनिया में जहां पर भी अध्यापकों ने बहुत बड़ा योगदान किया है, जैसे मैं जापान का उदाहरण लेता हूँ कि सबसे अधिक पीड़ित, प्रताड़ित, अपमानित देश था 1945-46 में, और कैसे आगे बढ़ा। मैं जब वहां जाता था तो यही पूछता था कि आपने कैसे ये परिवर्तन किया। हमने परिवर्तन स्कूलों से किया, अध्यापकों से किया। उन्हें बताया कि आप देश का निर्माण कर रहे हैं, आप भले ही आप सफाई कर रहे हो, आप शिक्षा दे रहे हो, आप शोध कर रहे हो, अध्यापक के अंदर देश को ये भावना भरनी है कि वो देश का निर्माण करता है, वो हजारों लोगों का जीवन बदल सकता है, उसका काम छोटा नहीं है, किसी से भी छोटा है। ये प्रश्न उठेगा जब आप अन्य चीजों की तरफ जाएंगे। जैसे 1970 के आसपास हम लोग अक्सर चर्चा सुनते थे कि 4 ढंग से बात की जाती, जो कोरोना के बाद भी आपको देखने पड़ेंगे। पहला, और जिस पर अभी पूरी चर्चा, कैसे पढ़ाया जाए। एक जमाना था जब ऑडियो विजुअल एड्स की बात करते थे, ओवरहेड प्रोजेक्टर बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वहां से चलते चलते हम कहाँ पहुंच गए, हमारी यात्रा की तेजी बढ़ गई, गति बढ़ गई, और कोरोना ने उस गति को और कई गुना एकदम बढ़ा दिया। लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हुआ कि हम सीखने में आगे बढ़ गए। आज ये वेबिनार जो शुरू हुए हैं, इनको शुरू होने में शायद और कई वर्ष लग जाते अगर कोरोना ना होता। हर आदमी ने सीखा और समय का उपयोग करना सीखा। ये भी देखिए कि मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो खाली नहीं बैठ सकता, घर में कब तक बैठा रहेगा, क्या करेगा? पढ़ेगा, लिखेगा, वेबिनार में हिस्सा लेगा, उसकी तैयारी करेगा, और ज्ञान का जो प्रवाह बनता रहे। मनुष्य के विकास की यात्रा, मानवीय सभ्यता के विकास की यात्रा कुछ चीजों से जनित होती है। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र करता हूँ, उन्होंने कहा था कि हर बच्चे के पास 2 वरदान होते हैं, और स्कूलों का कर्तव्य है कि दोनों वरदान कुंठित न हो। और वो वरदान क्या है? पावर ऑफ आइडियाज, पावर ऑफ इमेजिनेशन। मैं जब ये 2 शब्द सुनता हूं तो मुझे तुरंत लगता है कि, और सामान्य भाषा में कहूं तो, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी। सारा ज्ञान जो मनुष्य ने प्राप्त किया है वो इन्हीं 4 शब्दों के आसपास प्राप्त किया है। आपका कर्तव्य ये होगा कि ये 4 के चारों शब्द व्यवहार रूप में आते रहें। हमारा कोई भी पाठ्यक्रम, हमारी कोई भी परीक्षा पद्धति बच्चों के पावर ऑफ आइडियाज और पावर ऑफ इमेजिनेशन को कुंठित न करे। उनकी संवेदनात्मक स्थिति, उनकी सहजता, उनका आपस में भाईचारा, ये बढ़ते रहे। तो सबसे पहला प्रश्न यही था जो कि कैसे पढ़ाया जाए। और इमीडिएट लर्निंग की बात हम दोनों की, हम जानते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग शुरू हो गई थी, बड़े अच्छे ढंग से शुरू हो रही थी, लेकिन उसका जो परिमाण है, द मेजर है, सडनली increased manifold and therefore issues have also increased manifold। वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल डिवाइड तक जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कौन पढ़ाए, ये प्रश्न का उत्तर जब ढूंढेंगे तो लगेगा कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मूलभूत रूप से बदल जाना होगा, अन्यथा वे अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं कर पाएंगे। ये प्रश्न भी आपके सामने आ रहा है कि क्या पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, बस्ते के बोझ का क्या हो, एनसीईआरटी करिकुलम कैसे कम करे। हमारे एक बार मंत्री जी ने कहा था कि हम 50% कम कर देंगे, तो ऐसा है तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अब उसका ढंग बदल जाएगा। कंटेंट का टोटल अप्रोच टुवर्ड्स कंटेंट विल चेंज। और कुल मिलाकर के an attitudinal transformation has to take place and has to take place at every level and with every individual।
बच्चे को समझने के लिए बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा। जो लोग बच्चों के मनोविज्ञान में कार्य करते हैं, शोध करते हैं, उन्हें नई परिस्थितियों में अपने शोध को नई दिशा देनी होगी। बिना उसके मुझे नहीं लगता कि हम बच्चों के ज्ञान की प्राप्ति के संघर्ष को सरल बना पाएंगे। आपका उद्देश्य ये है कि जो ज्ञान, जो कौशल, जो सृजनात्मकता, जो नवाचार की अपेक्षाएं हम बच्चों से कर रहे हैं, उनके लिए क्या हम उन्हें वो आवश्यक सब कुछ दे रहे हैं? इमोशनल, मेंटल स्किल्स, नॉलेज, विजडम, डिस्क्रिमिनेशन, ये इतनी चीजें हैं जिनके सारे के सारे के आसपास हमारी परिचर्चा और चर्चा होनी चाहिए। तो कुल क्या चाहिए हमें? सारी दुनिया में इस पर चर्चा होती है कि 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। पहला तो सब जानते हैं, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी। ये 1972 में एडगर फॉरे की रिपोर्ट आई थी, तब ये बात कही गई थी कि हम मनुष्य को मनुष्य कैसे बनना है ये देखना पड़ेगा। मैं एक व्यक्तिगत बात यहाँ कह देता हूँ कि एनसीटीई जब बन रही थी तो मैं कई लोगों के पास गया कि अध्यापक, अध्यापन और शिक्षा, इन तीनों को मिलाकर कोई एक सूत्र वाक्य मुझे दीजिए जो मैं इसके एम्ब्लम में लगाऊं। और मुझे मिला। एनसीटी का, अब मैं बहुत जिक्र नहीं करता, लेकिन एनसीटी का सूत्र वाक्य है गुरुर गुरुतमो धामा। जितने भी अध्यापक सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उसको जाने। मैंने इसका अर्थ पूछा। अर्थ यह है कि टीचर टेक्स ए पर्सन फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी। मनुष्य से दैवत्व की ओर ले जाए, वो अध्यापक है। और ये ऐसा नहीं कि शब्दों में कहा जाए, अब इसकी आवश्यकता है। जैसे एक और बात आप सबके ध्यान में आ रही होगी, पाठ्यक्रम कैसे बदलेंगे? इसको ध्यान में रखेंगे कि लर्निंग टू लर्न से अब कोई छुटकारा नहीं है। एक कौशल आज सीख लेने से वो 25 साल, 30 साल, 45 साल मेरी मदद करेगा, वो संभव नहीं रहा। इसलिए जो एक छोटा सा वाक्य बार बार दोहराया जाता है कई बार, यावत जीवेत अध्येते विप्रः। समझदार व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। ये हम सुनते थे लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते थे। आज हम इसे व्यवहारिकता में देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हर जगह कहा जाता है लर्निंग टू लर्न एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब हमें बच्चों को ये सिखाना है कि तुम्हें स्वाध्याय खुद सीखना है। ये सीखो कि आगे कैसे और सीख सकोगे, और कैसे सीखोगे, क्या सीखोगे, कैसे निर्णय लोगे। क्योंकि हम लोग ये कहते रहे कि ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं होता। गीता का वो श्लोक की लाइन हम कोट करते हैं, नहीं ज्ञाने सदस्यम पवित्रम विद्यते। इस पृथ्वी पर ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है सोचने का, जो आगे के बच्चों को सीखना पड़ेगा। केवल ज्ञान से मनुष्य दैवत्व की ओर नहीं जाता, मनुष्यत्व नहीं प्राप्त करता। हिरोशिमा का उदाहरण मैं देता हूं। 1945 में विज्ञान का जो चरम उत्कर्ष था, सारा ज्ञान जो हम एटम के बारे में, न्यूक्लियर के बारे में, बड़े बड़े मैथमेटिक्स, साइंटिस्ट लास अलामोस में इकट्ठे हुए, एटम बम बना। लोगों ने कहा विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, ज्ञान में हम बहुत आगे गए थे। लेकिन उस ज्ञान का दुरुपयोग हुआ, और दुरुपयोग क्या हुआ? हिरोशिमा हुआ। तो ये एक चीज, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ज्ञान था, विवेक नहीं था। तो आगे चल करके हम हर बच्चे को बताएंगे कि जब तुम निर्णय लोगे कि वो क्षमता विकसित करोगे, उसकी तैयारी करो। ज्ञान, बुद्धि, विवेक के अंतर को जानो। क्योंकि मनुष्य, बर्ट्रैंड रसल ने एक जगह लिखा है कि केवल ज्ञान पर निर्भर रहकर मनुष्यता आगे नहीं चलेगी। बड़ा अजीब सा लगता है, हम तो ज्ञान को सबसे पवित्र मानते हैं। लेकिन वो आगे लिखता है कि जब तक ज्ञान के साथ डिस्क्रिमिनेशन पैदा नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, ज्ञान का सदुपयोग नहीं होगा। हमारी तो परंपरा में यही कहा जाता है कि 4 सोपान है स्कूलों के लिए, विद्या सीखने के लिए। अध्ययन, हम अभी अध्ययन पर चर्चा कर रहे हैं। कैसे होगा, उसके तरीके क्या होंगे, कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, किसे पढ़ाएगा, ये 4-5 शब्दों के आसपास हमारी चर्चा है। लेकिन इसमें 3 पक्ष और है, इसके बाद मैं बंद करूंगा, शायद समय हो गया होगा।
अध्ययन, ठीक है। उसके बाद मनन, जो हम स्कूलों में नहीं देते थे बच्चों को, आज भी नहीं करते। 50 मिनट का लेक्चर है, प्रोफेसर साहब गए बोले, और जब उनका 52 मिनट हो गया, दूसरा व्यक्ति सामने खड़ा हो गया आकर के, तो चले गए। हमारी परंपरा में ऐसा नहीं था। आप उसे मनन का, सोचने का समय दीजिए। अगर मैंने 20 मिनट सुना है तो मुझे 5-10 मिनट चाहिए ये सोचने के लिए कि मैंने क्या सुना है, मैंने क्या रखा है मस्तिष्क में, और वहां पर मुझे लगेगा कि मुझे ये समझ में आया था, ये नहीं आया। तो तीसरा सोपान है चिंतन। मैं अपने किसी न किसी से बात करूंगा। बच्चे जब आपस में बात करते हैं, सीखते हैं, क्या वो चीज अब कम हो जाएगी या कैसे उसको, ये मनन है। अध्ययन, मनन, चिंतन, ये तीनों चीजें जो है आपको अपने सारी व्यवस्था में बनाए रखनी है, क्योंकि ये शाश्वत है। दुनिया में कोई उसको मना नहीं कर पाता कि बिना पूर्ण अध्ययन के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण है चौथा, उपयोग। उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है जो जिसका उपयोग व्यक्ति न जानता हो। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब मुझे डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाया गया, मैंने पढ़ लिया, मैं परीक्षा में पास हो गया, लेकिन मैं समझा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था इसका इस्तेमाल क्या होगा। अगर मुझे ये बता दिया जाता उस समय ये क्यों किया जा रहा है, आवश्यक क्यों है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ज्ञान का जो हिस्सा दीजिए वो उसको बताइए। और अब जो हमारे संबंधों में जो परिवर्तनों में आया है कि स्कूलिंग बियॉन्ड स्कूल्स, स्पोर्ट्स बियॉन्ड प्ले फील्ड्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कही जा रही हैं चारों तरफ, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन परिवर्तन बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहा था, हम बहुत आगे बढ़ रहे थे, हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे, तेजी से जा रहे थे। मुझे याद है कि 1985 में मैंने एक लेख पढ़ा था फिजिक्स की एक प्रोफेशनल पत्रिका में। कंप्यूटर टेरिफाइड्स का सिलेबस बना था यूनाइटेड स्टेट्स में, बहुत शुरू से 80 या 75 के आसपास, कि लोग क्लिक करने से डरते थे। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, और उस प्रवृत्ति में हमने अपने टीचर्स को भी देखा था कि कंप्यूटर के उपयोग में वो पीछे हटते थे। हमारी एक होती है, बड़ी मुश्किल से लोग धीरे से, अब उन्हें बच्चों ने सिखा दिया, घर में बच्चों ने सीखते हुए सिखा दिया। और अगर आप देखें, ढूंढे, तो रेसिप्रोकल लर्निंग का इससे बड़ा और कोई उदाहरण मैंने नहीं देखा है। जबरदस्त ढंग से रेसिप्रोकल लर्निंग हो रही है। मैं सीख रहा हूँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, हमें से बहुतों का यही अनुभव है, और हमें ये आश्चर्य होता है कि बच्चे नई तकनीकी से, नई विधा से कितनी जल्दी अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। प्रसन्नता भी होती है, अच्छा भी लगता है। और इस समय एक और चीज हुई है कि जिस स्क्रीन टाइम की बात अभी आई थी, वो पाठक जी ने कही, पहले सबको लगता था कि दुरुपयोग हो रहा है, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो। आज नहीं लगता, आज लगता उपयोग हो रहा है। बच्चों के मन में भी ये बात बैठ गई है, और बच्चे भी अब उस उपयोग को ज्यादा जानने लगे हैं, दुरुपयोग से आगे हटते हैं। अंतिम बात मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि बहुत से अध्यापक इसको सुन रहे होंगे, उनको मैं कहूंगा, ये मानकर चलिए कि भारत के भविष्य का निर्माण आप कर रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं कर रहा। आप चाहे प्राइमरी के अध्यापक हो, चाहे विश्वविद्यालय में हो, कहीं पर भी हो। मैं अब ये बात कहता हूँ, लोग मुझे अहंकारी कहें, कुछ भी कहें, कि हाँ, मैंने बहुत से बच्चों के जीवन में उनकी दिशा को बदला, और अब उनकी सफलता की बात जब मैं सुनता हूँ, जैसे आप सब सुनते होंगे, हर अध्यापक की उपलब्धि होती है, तब मुझे लगता है कि मैंने जीवन में बहुत बड़ा काम किया। तो गांधी जी ने लिखा, मेरी माँ ने कहा था कि यदि अपने जीवन में तुम एक का जीवन बचा सकते हो या एक का जीवन बना सकते हो, तो तुम्हारा जीवन सफल माना जाएगा। अधिक क्या कर सकते हो, तो ईश्वर की कृपा है। इसलिए हर अध्यापक पर ईश्वर की कृपा है। जैसे हर बच्चे को 2 वरदान मिले हैं, पावर ऑफ आइडियाज, पावर ऑफ इमेजिनेशन, वैसे ही हर अध्यापक को ये अवसर मिला है कि वह जीवन में लोगों को उसके उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त करने में प्रसन्नता और संतुष्टि का अवसर प्रदान करने में सहायता करे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. And this is what we people are blessed today कि आप सब जैसे इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, जिसने एकदम इस वेबिनार को अटेंड करने से पहले का माहौल और इसको अटेंड करते हुए के माहौल में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा एक पॉजिटिव वाइब्स चेंज हो रहा है।
और राजपूत सर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि घर के अंदर दादा दादी पोते पोतियों से सीख रहे हैं व्हाट्सएप करना, तो जब उस एज के अंदर वो ट्रांजेक्शन हो सकता है तो यस इट कैन बी एनीवेयर व्यूड एंड इतना। राजपूत सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपना समय और अपना इतनी अच्छी बात के लिए हमें दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड, ज्ञान का सागर।